অমৃতসরে নাশকতার ছক বানচাল। ভারতের মার খেয়েও চরিত্র বদলায়নি পাকিস্তানের। পাঞ্জাবে খালিস্তানিদের দিয়ে নাশকতার ছক আইএসআইয়ের। অমৃতসরের মাজিতা রোড বাইপাসে বোমা রাখার চেষ্টা। বোমা রাখতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু খালসা জঙ্গি। বিস্ফোরণের পরই বিশাল পুলিশ বাহিনী যায় ঘটনাস্থলে। নিহত জঙ্গি বাব্বার খালসা সংগঠনের সদস্য ছিল। इस आदमी की जो सुबह इंजर्ड हुआ था, इसकी डेथ हो चुकी है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है और ये जो विस्फोटक सामग्री थी इसको रिट्रीव करने आया था, तो ये भी उसी चीज का ही एक हिस्सा था। और जो मरने वाला है उसकी जेब से हमें काफी कुछ क्लू मिले हैं जो इस चीज के साथ टोटली लिंक करते हैं, तो हम आगे अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, हाँ, ये जैसे अब पंजाब में ये बब्बर खालसा और ऐसे एक्टिव ही है, तो ये मोस्ट लाइकली बब्बर खालसा का ही ये एक्टिव मेंबर होगा। আসামে ঠাকুরানবাড়ি সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছিল। সেই অনুপ্রবেশ আটকে দিয়েছে বিএসএফ গুলি চালায় সীমান্তে। মানকাছাড়, আসামের মানকাছাড়ের সীমান্তে গুলি বিএসএফের। ঠাকুরানবাড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশে বাধা। বিজিবির সঙ্গে বচসা বিএসএফের। ঠাকুরানবাড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশে বাধা বিএসএফের। সীমান্তে গুলি চালায় বিএসএফ, বিজিবির সঙ্গে বচসা। আসামের মানকাছাড়ে সীমান্তে গুলি বিএসএফের। ঠাকুরানবাড়ি সীমান্তে অনুপ্রবেশে বাধা দেয় বিএসএফ, তখনই বিজিবির সঙ্গে বচসা বাঁধে বিএসএফের। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা। মেখলিগঞ্জ সীমান্তে ব্যাপক উত্তেজনা। বিএসএফ এর দিকে চড়াও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। পাল্টা রুখে দাঁড়ায় বিএসএফ। মেখলিগঞ্জের বাগডোগরা ফুলকাডাবড়ি সীমান্তের ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে বৈঠক। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা। মেখলিগঞ্জ সীমান্তে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। বিএসএফ এর দিকে চড়াও হয় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। পাল্টা রুখে দাঁড়ায় বিএসএফ। আরো বিস্তারিত জানবো, শুভঙ্কর রয়েছে আমার সঙ্গে। শুভঙ্কর, ঠিক কি ঘটেছিল সেই সময়? হ্যাঁ মিমি, দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি, মেখলিগঞ্জ মহকুমার বাগডোগরা ফুলকাডাবড়ি সীমান্ত দিয়ে একদল বাংলাদেশি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল। সে সময় সীমান্ত প্রহরারত দিয়ে এক বিএসএফ জওয়ান তাদের বাধা দিলে তাদের ওপর বিএসএফ এর একদল দুষ্কৃতী হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে লাঠি বাটাম নিয়ে তাড়া করে। এবং এই গোটা বিষয়টি যখন অন্যান্য সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা দেখতে পায়, তারাও ছুটে আসে। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। যদিও পরবর্তীতে বিএসএফ ওই দুষ্কৃতীদের কাজীদের হটিয়ে দেয় এবং খবর পেয়ে সেখানে বিএসএফ, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিজিবি তারা আসে। পরবর্তীতে ফ্ল্যাগ মিটিং হয় এবং ফ্ল্যাগ মিটিং এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে আগামীতে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে না এবং বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা যাতে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়েও সীমান্তরক্ষী বাহিনী নজর রাখবে। ধন্যবাদ শুভঙ্কর। মেক ইন ইন্ডিয়ায় জোর। যুদ্ধ বিমান তৈরিতে বেসরকারি বিনিয়োগে অনুমোদন কেন্দ্রের। প্রকল্পের সূচনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। देश ने एक सपना देखा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना के रहेगा और लगता है ये सपना अब पूरा हो चुका और सपने ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक 1:1 मॉडल है, यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एम का प्रोग्राम है उसका जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट आएगा तो सेम यही होगा। ये पहली झलक है जो आने वाले दिनों में भारतीय आसमान पर अपना दमखम दिखाएगी। दुनिया में कई ऐसे देश थे जिनको लगता था कि सिर्फ उन्हीं के पास तकनीक है, किसी और के पास नहीं, लेकिन अब 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक हमारे पास भी है और डीआरडीओ ने इसको बनाया है। Very happy because the nation is witnessing that air prowess and technological advancements that has happened in the country, that we are showcasing to the entire nation that India is
going to have its own 5th generation fighter. We are not far away. We are just reached. অমৃতসরে নাশকতার ছক বানচাল, ভারতের মার খেয়েও চরিত্র বদলায়নি পাকিস্তানের। পাঞ্জাবে খালিস্তানিদের দিয়ে নাশকতার ছক আইএসআই এর। অমৃতসরের মাজিতা রোড বাইপাসে বোমা রাখার চেষ্টা, বোমা রাখতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু খালসা জঙ্গির। বিস্ফোরণের পরই বিশাল পুলিশ বাহিনী যায় ঘটনাস্থলে। নিহত জঙ্গি বাব্বার খালসা সংগঠনের সদস্য ছিল। इस आदमी की जो सुबह इंजर्ड हुआ था, इसकी डेथ हो चुकी है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही है और ये जो विस्फोटक सामग्री थी इसको रिट्रीव करने आया था। तो ये भी उसी चीज का ही एक हिस्सा था और जो मरने वाला है उसकी जेब से हमें काफी कुछ क्लू मिले हैं जो इस चीज के साथ टोटली लिंक करते हैं। तो हम आगे अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, हाँ, ये जैसे अब पंजाब में ये बब्बर खालसा और ऐसे एक्टिव ही है, तो ये मोस्ट लाइकली बब्बर खालसा का ही ये एक्टिव मेंबर होगा। মুম্বাই বিমানবন্দরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে। মুম্বাই বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, মুম্বাই বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমার হুঁশিয়ারি। বিমানবন্দরে পুলিশ আর বম্ব স্কোয়াডের টিম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু মেলেনি। সন্দেহভাজন টেলিকলারকে আটক করেছে পুলিশ। प्रतिनिधि येशा कोटक এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সরাসরি প্রতিনিধির কাছে যাব। येशा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिसको मुंबई पुलिस हिरासत में लिया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? किस मकसद से ये फोन किया गया था? जहाँ हम बात करें, ये जो पर्सन हिरासत में लिया गया है उसका नाम माजी गौतम है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि माजी गौतम ने ही कॉल किया था मुंबई पुलिस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पे उसने कॉल करके ये कहा था कि मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। यहाँ तक कि पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड दोनों ही टीम को तुरंत ही एयरपोर्ट भेजा गया था, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं पाया गया, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने केस रजिस्टर करके माजी गौतम को अरेस्ट किया है। और अभी उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने ये कॉल क्यों किया था। फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई कॉल आए थे। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले ही मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था 2 कॉल्स के, जिसमें ताज पटेल और मुंबई एयरपोर्ट दोनों जगह पे कॉल आए थे और इस पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। अब क्या इस इंसान ने कोई होक्स कॉल किया है या इसके पीछे उसका कोई मकसद है, इसकी जांच अभी भी मुंबई पुलिस कर रही है। जी, और एक सवाल, ये कॉल आने के बाद क्या अफरा तफरी का माहौल मच गई थी? जहाँ हम बात करें तो ये कॉल जो है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम को आया था, तो उन्होंने तुरंत ही मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया। ऑफ कोर्स इसकी जांच या इंफॉर्मेशन पैसेंजर्स तक नहीं पहुंचने दी गई थी और तुरंत ही मुंबई पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड उस एरिया या तो जो एयरपोर्ट की प्रेमाइसेस है उस वहाँ पे पहुंच चुके थे और तुरंत ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। और उसके बाद क्योंकि ये कॉल में ऐसा कहा गया था कि मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुंबई पुलिस को उससे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला था। येशा जी, क्या जब ये कॉल आया था तुरंत किसी फ्लाइट पर कोई असर पड़ा था? इससे किसी फ्लाइट पे असर नहीं आया था, क्योंकि जब ये कॉल आया था तो जैसे हमने कहा कि कंट्रोल रूम को कॉल किया गया था और कंट्रोल रूम ने इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी। अब मुंबई पुलिस की बात करें तो पिछले कुछ समय में मुंबई पुलिस को ऐसे कई कॉल आए थे, कई बार मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को भी कॉल आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऐसे कई कॉल, जब हम बात करें तो कुछ हॉस्पिटल्स में भी आए थे, लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि वो कॉल थे और वो एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी ड्रिल किए गए थे। जहाँ हम ये कॉल की बात करें तो ऑफकोर्स ये प्रिकॉशनरी ड्रिल नहीं है, लेकिन इसके पहले भी जब हम देखे ताज होटल और एयरपोर्ट दोनों जगह ये कॉल आए थे। तो पिछले कुछ समय में ऐसे कई कॉल आ रहे हैं। मुंबई पुलिस का ये कहना है कि ऐसे कई कॉल आते हैं, लेकिन होक्स कॉल होते हैं और ये जांच की जा रही है कि ऐसे होक्स कॉल अवर क्यों रहे। मुंबई पुलिस ने अपना जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी कुछ लोग को डिप्लॉय किया गया है और मुंबई पुलिस इसी प्रकार पे है कि इसके लिए कोई लॉ बनाया जाए ताकि ऐसे कोई कॉल जो आ रहे हो उसे मॉनिटर किया जाए, यहाँ तक कि जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया येशा जी।